Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 12 of exercise 8A of 8th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 12. A shopkeeper bought 300 eggs at 80 पैसा each. एक शॉपकीपर ने 300 eggs खरीदे हैं जिसमें एक एक egg का प्राइस है 80 पैसा. 30 eggs were broken in transit and then he sold the remaining eggs at 1 rupee each. ट्रांजिशन के दौरान 30 eggs टूट चुके हैं और उसने बाकी के बचे हुए एक्स को 1 रुपीज ईच में बेचा है. फाइंड हिज गेन और लॉस एज परसेंट. तो उसने कितना गेन या लॉस करा होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कितना दिया गया है 80 पैसा विच इज इक्वल टू 80 बाई 100. 0 रिड्यूस हो गया दैट इज रुपीज 0.8. 1 एग का कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज 0.8. So cost price of 300 eggs कितना होगा. उसने 300 eggs को 80 पैसा ईच में खरीदा था. So 300 into 8 by 10. 0 रिड्यूस हो गया which is equal to rupees 240. 30 eggs were broken in transit. लाते समय ट्रांजिशन में 30 eggs टूट चुके हैं तो हमारे पास रिमेनिंग eggs कितने हैं 270. So cost price of 270 eggs कितने हो जाएंगे. That is 8 by 10 into 270. 0 reduce हो गया which is equal to 8 into 27 rupees 216. अब हमारे पास 270 x का कॉस्ट प्राइस आ गया है. Now selling price of 1 egg. एक एग का सेलिंग प्राइस कितना है उसने 1 रुपी ईच में बेचा है that is rupees 1. So selling price of 270 eggs is rupees 1 into 270 which is equal to rupees 270. Cost price of 270 x है 216. Selling price of 270 x है 270. मीन्स प्रॉफिट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज 270 minus 240 by 240 into 100. That is CP, SP minus CP by CP into 100. Selling price 270 था, cost price 240, which is equal to 270 minus 240, 30 by 240 into 100. 0 reduce हो गया, 3 8s are 24, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20. 25 by 2 means 12.5%. So उसे कितना प्रॉफिट हुआ है 12.5% का. Now question number 13. By selling an article for rupees 900, a man gains 20%. किसी आर्टिकल को अगर रुपीज 900 में सेल करते हैं तो उस मैन को 20% का प्रॉफिट होता है. फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड द गेन. तो कॉस्ट प्राइस और गेन क्या है. हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है. सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस p% बाई 100 इंटू CP. दैट इज सेलिंग प्राइस हमारे पास है 900 which is equal to 100 plus profit percent है 20%, that is 20 by 100 into CP. That implies CP equals 900. ये डिनोमिनेटर का 100 इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा सो into 100 by 100 plus 20 120. 10 रिड्यूस हो गया. 3 4s are 12, 3 3s are 9, 0 0. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0. That implies cost price कितना हो गया rupees 15 5s are 75 and 0 rupees 750. क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड द गेन. हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है तो हम गेन निकाल सकते हैं. सो गेन इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 900 माइनस कॉस्ट प्राइस दिया गया है 750 which is equal to 900 minus 750 is rupees 150. So हमें गेन कितना मिला rupees 150 और कॉस्ट प्राइस हमारा 750. Now next question is by selling an article for rupees 704 a person loses 12%. किसी आर्टिकल को rupees 704 में सेल करने के बाद एक पर्सन को 12% का लॉस होता है. फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस. हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 minus L by 100 into CP. This is L%. That implies selling price कितना दिया गया है 704 which is equal to 100 minus loss percent कितना है 12 by 100
into CP. That implies CP equals 704 into 100 by 100 minus 12 कितना होता है 88. तो 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 0. 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4. 2 1 2, 2 1 2. 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4. 11 3 33, 11 2 22. That implies cost price equals 32 into 25. कितना हो जाएगा ₹800. हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया ₹800. अब पूछा गया लॉस कितना होगा. Therefore, loss equals CP minus SP, which is equal to cost price कितना आया है 800 minus selling price कितना है 704, which is equal to rupees 800 minus 704 is rupees 96. So our loss is 96. Now question number 15. Find the selling price. Selling price निकालना है. First bit. Given conditions क्या क्या है? Cost price दिया गया है, overheads दिया गया है, profit percent दिया गया है. So total CP is equal to जो cost price given है that is 352 plus overheads that is 28 which is equal to rupees 380. अब हमारे पास total cost price आ गया क्योंकि cost price में overheads मिलाएंगे तो ही total CP आएगा. Profit percent दिया गया है 20%. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा. हमें पता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट परसेंट कितना है 20. प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी. हमारा एसपी कितना है नहीं पता क्योंकि एसपी ही पूछा गया है. कॉस्ट प्राइस इज 380 अपॉन 380 इंटू 100. दैट इम्प्लाइज 20 इंटू 380 बाई 100 इक्वल्स एसपी माइनस 380. एक जीरो रिड्यूस हुआ, एक जीरो रिड्यूस हुआ. इसे यहां सॉल्व करते हैं. सो एसपी माइनस 380 इज इक्वल टू ये कितना होगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 76. दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस इक्वल्स माइनस 380 इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा सो प्लस 380 एंड 76 प्लस करेंगे सो एसपी इक्वल्स रुपीज 456. हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया था, हमने निकाल लिया. हमारा सेलिंग प्राइस आया रुपीज 456. Now second bit is cost price is rupees 576, overheads rupees 44 and loss is of 16%. So total CP कितना हो जाएगा? Total CP हो जाएगा 576 plus 44 which is equal to rupees 620. लॉस परसेंट दिया गया है 16%. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस परसेंट है 16. लॉस मीन्स सीपी माइनस एसपी. सो 620 माइनस एसपी बाय 620 इंटू 100. दैट इम्प्लाइज 16 इंटू 620 बाय 100 इक्वल टू 620 माइनस एसपी. एक जीरो रिड्यूस हो गया. देन 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. और कुछ रिड्यूस तो नहीं हो रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट. इसे यहाँ सॉल्व करते हैं. 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 1 49 by 5 that is 496 by 5 equal to 620 minus SP. That implies SP equals 620 minus 496 by 5. That implies SP equals 2604 by 5. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2604 by 5 which is equal to rupees 520.80. ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. Now question number 16. If John sells his bicycle for rupees 637, he will suffer a loss of 9%. John अगर अपने बाइसाइकिल को रुपीज 637 में सेल करता है तो उसे 9% का लॉस होगा. For how much should it be sold if he desires a profit of 5%? अगर वो 5% का प्रॉफिट करना चाहता है तो उसे सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए? गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज 637 और लॉस परसेंट दिया गया है 9%.
देयरफॉर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है SP इक्वल्स 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। सेलिंग प्राइस दिया गया है 637 विच इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट है 9 बाई 100 इंटू CP। दैट इम्प्लाइज CP इक्वल्स 637 इंटू 100 बाई 100 माइनस 9 कितना होगा 91। अब इसमें क्या करें 91 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 637 मिलेगा। सो आवर कॉस्ट प्राइस इज ₹700। ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में बोला गया वो कितने में सेल करेगा कि उसे प्रॉफिट 5% का हो। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, अगेन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज 5%। वी नो दैट सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। SP कितना है, SP पूछा गया है कि कितने में सेल करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 5 बाई 100 इंटू CP। CP हमें कितना मिला है 700। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया। दैट इम्प्लाइज SP इक्वल्स ₹105 यहाँ से इंटू 7। दैट इज SP इक्वल्स ₹735। सो हमें SP कितना मिला 735 मिला, जो कि वो प्रॉफिट ऑफ 5% अर्न कर सकता है अगर वो ₹735 में बाईसाइकिल सेल करता है। Now question number 17. A man sells a radio set for ₹605 and gains 10%. एक मैन एक रेडियो सेट को 605 रुपीज में सेल करता है और गेन करता है 10% का। At what price should he sell another radio of the same kind? और वो किस प्राइस में सेल करे एक दूसरे रेडियो को सेम काइंड का इन ऑर्डर टू गेन 16%, अगर उसे 16% का प्रॉफिट करना हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो क्वेश्चन में गिवन है इज ₹605 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। SP इक्वल्स 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 605 इक्वल टू 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू CP। तो CP क्या हो जाएगा 605 इंटू 100 बाई ये 100 प्लस 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 110। तो अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया। 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। दैट इम्प्लाइज CP इक्वल्स ₹550। ये हमारे पास CP आ गया। अब पूछा गया है दूसरे रेडियो को अगर सेल करना है 16% के प्रॉफिट में तो हमें सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा। यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है, 16% का गेन दिया गया है, तो हम अगेन यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगेन another radio sold at 16% प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore SP equals 100 plus P% by 100 into CP। That is SP equals 100 plus 16 by 100 into CP। CP कितना है 550। 1 0 1 0 रिड्यूस हुआ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। That is SP equals 100 plus 16 116 by 2 into 11, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। That implies selling price equals ₹638। मीन्स उसे वो रेडियो ₹638 में सेल करना है अगर उसे 16% का प्रॉफिट करना है। Now question number 18. By selling a sofa set for ₹2,500, the shopkeeper loses 20%. किसी सोफा सेट को एक शॉपकीपर 2,500 में सेल करता है जिससे उसे लॉस होता है 20% का। Find his loss percent or profit percent if he sells the same sofa set for ₹3,150. उसी सोफा सेट को अगर वो 3,150 में सेल करता है तो उसे लॉस होता है या प्रॉफिट, हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है। Now SP of sofa set is equal to ₹2,500। सोफा सेट का सेलिंग प्राइस बोला गया है 2,500 है और लॉस है 20% का। लॉस परसेंटेज
20%. Therefore, again direct formula में substitute करते हैं. SP equals 100 minus loss percent by 100 into CP. SP कितना है? 2500 equals 100 minus loss percent कितना है? 20 by 100 into CP. That implies CP equals 2500 into 100 by 100 minus 20 is 80. 24 is 80, 25 is 100. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. That implies cost price equals 625 into 5, rupees 3125. ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया. अब पूछा गया है कि फाइंड इज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ सेल्स द सेम सोफा सेट फॉर रुपीज 3150. वो सेल कर रहा है रुपीज 3150 में और हमारे पास कॉस्ट प्राइस है रुपीज 3125 मीन्स जरूर प्रॉफिट हुआ होगा. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%. सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी. एसपी इज 3150 minus CP is 3125 by CP 3125 into 100. That implies profit percent will be 3150 minus 3125. 25 by 3125 into 100. 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 25 5s are 125, 25 4s are 100. तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 4/5 which is equal to 0.8%. तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया. That's all for this video.